Good evening, friends. A warm welcome to all. Today, the webinar is on Audit of Agriculture Advances in Bank Branch Audit. The lending to agriculture sector include farm credit, agriculture and allied activities, lending for agriculture, infrastructure and ancillary activities. And the auditor's role is to check whether necessary due diligence, pre-inspection report, lawyer research report, report of credit information company, copy of khasra and khatoni as per bank's policy has been carried out. Credit limits, short-term farm credit and term loan components are assessed on the basis of relevant criteria as per bank's policy, such as operational land holding, cropping pattern, and current scale of finance. And RBI guidelines on revised KCC scheme have been adhered meticulously or not. As per the prudential norms for agriculture advances granted for agriculture purposes are treated as NPA, where interest or installment of principal remain unpaid after it has become due for two harvest seasons but for a period not exceeding 2.5 years. However, in the case of longer duration crops, the current prescription of not exceeding 2.5 years is inadequate. And for this, we have a guest speaker, CA Vivek Khurana ji. He is the founder of CA Sansaar, doing social service via social website CA Sansaar from the last 12 years for the students and the members. You can see a single window for CA members and the students pursuing CA. The daily updates are available here, and after becoming a CA, you need a job that is also there, and then for marriage matrimonial section is also there. He was elected NIRC member and also remained vice chairman of NIRC of ICAI. He speaks on various topics like ICAI MOU with CP Australia, Canada, Ireland, and also guides us regarding PR of these countries. He also speaks on other topics like Code of Ethics, MSME, bank branch audits, and many more. Now, I welcome you, sir, on the precious platform of CA Sansaar. Hand over to you, sir, please. Thank you very much, Stuti ji. CS Stuti Majan ji. Pooja, I think his cam is not working. So, Pooja ji and all other respected members who have just joined us. First of all, my sincere thanks to Team CS Ansar for giving me once again opportunity to speak on this very, very important topic on the agriculture advances. So, Stuti ji, I think thoda sa just want to correct you. So, in the IREC norms of the RBI, there are nothing mentioned about the 2.5 year like that for the NPR. There are only one thing is there if interest or principal overdues for two crop season in case of short term crop loan or one crop season in case of long term crop loan. तो उसके ऊपर भी हम अभी डिस्कस करेंगे तो but yes it's very very important because if we go to the rural branch the agriculture advances are very high तो मैनेजर आपको क्या बोलेगा हमेशा ही बोलेगा सर एग्रीकल्चर एडवांसेस में तो एनपीए होता नहीं है then he will come with their bank circular but one thing I just want to tell you that कोई भी बैंक ऐसा सर्कुलर इश्यू नहीं कर सकता which overruled the RBI circular तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो वन बाय वन विल सी तो लेट मी शो यू थ्रू द पीपीटी एक बार पीपीटी के थ्रू मैं बताता हूँ आपको यस audit of agriculture advances so before that one disclaimer is there all these are my personal views and can't be construed to be the views of the ICAI, CA Sansaar or any other person or any other authority and don't take it any legal advice or the legal opinion, professional advice or the professional opinion and the purpose of this webinar which we are doing here, which we are conducting is only to just spread knowledge, information, awareness and shall not be treated as solicitation in any manner for any other purpose whatsoever. And please, my request to all of you, go through the ICI guidance note, RBI master circular, relevant notification and circular, and the bank policy. So, regarding the agriculture law, so before that, I just want to tell like the priority sector advances. Which are the priority sector? Priority sector are the those sector which are the weaker sector. Means which sector are not getting timely and adequate credit in the absence of the specialist pensions. So there are many sectors which have prescribed by the RBI and RBI also asks the banks कि आपके जितने भी आप एडवांसेस प्रोवाइड करेंगे उसका कुछ परसेंटेज शुड बी फॉर द
प्रायोरिटी सेक्टर्स। तो एक ये प्रायोरिटी सेक्टर के ऊपर ये सर्कुलर भी है जो आपका ऑन अक्टूबर 26 2021 को आया था, मास्टर डायरेक्शन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स के ऊपर। उसमें प्रायोरिटी सेक्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अदर्स। तो विल डिस्कस अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में व्हाई दे नीड, मतलब व्हाट्स द नीड, व्हाट्स द ट्रेड नीड्स ऑफ द एग्रीकल्चर, कौन कौन से एडवांसेस दे नीड। तो एग्रीकल्चर पर्पस में आइदर इट कैन बी क्रॉप लोन या जिसको हम शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। तो दिस इज फॉर द क्रॉपिंग, मींस रेजिंग द क्रॉप्स एंड इट इज रीपेबल आफ्टर द क्रॉप सीजन। की मींस आपने जैसे कोई एक क्रॉप सीजन के लिए, रबी खरीफ उसके लिए किसी लिया, खरीफ के लिए, तो आपको यू कैन पे आफ्टर द क्रॉप सीजन इज ओवर। तो सेकंड इज मीडियम टर्म लोन। तो मीडियम टर्म लोन क्या है, आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिजाइन टू इंक्रीज द आउटपुट फ्रॉम द लैंड, या फिर डिपिनिंग ऑफ वेल्स, सिंकिंग ऑफ न्यू वाल्स, इंस्टॉलेशन ऑफ पंप सेट्स, परचेज ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी आर द रीपेबल। और जो ये है आपका मीडियम टर्म लोन, इट्स रीपेबल इनटू 3 to 5 years। देन लॉन्ग टर्म लोन्स, जो लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर द पर्पस ऑफ क्रेडिट एग्रीकल्चर है, उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, sinking of new walls, construction of tubewells, to purchase of tractors and purchase of land, other costly machinery, and these kind of loan are the advances are repayable in 5 to 15 years, and in some cases, exception cases are there, it's repayable into 20 years. Then जो एग्रीकल्चर एडवांसेस पे एक जो मास्टर सर्कुलर था, इट्स इनटू द अप्रैल 23 2015 के ऊपर ये सर्कुलर है, जिसमें बाइफरकेट कर रखे कि विच आर द एग्रीकल्चर एडवांसेस। रिमेंबर वन थिंग, रिमेंबर कि कोई भी एडवांस अगर आप फार्मर्स को दे रहे हैं तो इट डजंट मीन दैट द एग्रीकल्चर एडवांसेस। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फार्मर व्हीकल ले रहे हैं, कोई व्हीकल कार वगैरह ले रहे हैं, तो इट डजंट मीन कि वो एग्रीकल्चर एडवांस है। बट यस, इफ ट्रैक्टर इज गोइंग ऑन, अगर ट्रैक्टर परचेज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, देन इट्स एग्रीकल्चर एडवांस। सेम थिंग, अगर वो हाउसिंग लोन ले रहे हैं तो इट डजंट मीन कि इट्स फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, तो इट्स नॉट एग्रीकल्चर एडवांस। तो उसको बाइफरकेट कर रखा है, फार्म क्रेडिट, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, एंसिलरी सर्विसेज। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा क्विकली डिस्कस करते हैं, एंड देन विल सी वन बाय वन कि कौन से एडवांसेस एग्रीकल्चर है या नहीं, व्हाट्स द आईएक नॉर्म्स। तो सबसे पहले है जो फार्मर्स को क्लासिफाई कर रखे हैं, फार्मर्स, उसमें because why they are classifying into marginal, small and the medium, because some schemes are there which are available to the marginal and the small farmers। तो उसमें क्या है, if farmer कल्टीवेटिंग एग्रीकल्चर लैंड, अगर आपने कोई एग्रीकल्चर लैंड सिर्फ परचेज कर ली, तो इट डजंट मीन यू आर द फार्मर्स, देयर इज कल्टीवेटिंग द एग्रीकल्चर लैंड। आइदर इट कैन बी एज ए ओनर और द टेनेंट और द शेयर क्रॉपर। तो उसमें मार्जिनल फार्मर कौन होंगे, जिनके पास या तो एज ए ओनर या फिर टेनेंट या शेयर क्रॉपर फॉर द पर्पस ऑफ कल्टीवेटिंग एग्रीकल्चर लैंड। 1 हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 2.5 हेक्टेयर, अप टू 1 हेक्टेयर। तो स्मॉल फार्मर में मोर देन 1 हेक्टेयर अप टू 2 हेक्टेयर, मीन्स 2.5, मोर देन 2.5 टू 5 एकड़ उसके पास लैंड है। देन मीडियम फार्मर्स मोर देन 2 हेक्टेयर अप टू 5 हेक्टेयर, तो मोर देन 5 एकड़ टू 12.5 एकड़। और जो लार्ज फार्मर है, मोर देन 5 हेक्टेयर, मीन्स 12.5 एकड़ से अबोव उनके पास लैंड है, आइदर इट्स ओनर, tenant are the sharecroppers and for cultivating agriculture land। Then next is state level bankers committee, that's very very important। जितने भी आपके एग्रीकल्चर फाइनेंस हैं, SLBC supervise and monitor these finance। और एवरी स्टेट हैव देयर ओन SLBC, जो टाइम टू टाइम गाइडलाइंस इशू करती है द ब्रांचेस इन दीज स्टेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा इज देयर, तो हरियाणा की अपनी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी है, तो हरियाणा में जितनी भी किसी भी बैंक की ब्रांचेस है, उनको टाइम टू टाइम दे विल इशू द गाइडलाइंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज SLBC जो स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी है, दैट बैंकिंग कमेटी विल डिसाइड व्हाट्स द क्रॉप सीजन, कि जो क्रॉप सीजन है, सोलो क्रॉप, मोनोक्रॉप या फिर मल्टीपल क्रॉप सीजन है, और उसमें हार्वेस्टिंग टाइम क्या है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया में एक ही क्रॉप सीजन है, नो।
इट्स नॉट लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल केरला में मानसून जल्दी आती है, तो वहां पे डिफरेंट क्रॉप सीजन होगा, वहां पे डिफरेंट हार्वेस्टिंग टाइम होगा. हरियाणा में, पंजाब में थोड़ा लेट आती है, तो वहां पे डिफरेंट क्रॉप सीजन है, डिफरेंट हार्वेस्टिंग टाइम है. तो यू एज ए ऑडिटर should check the guidelines of the SLBC, and you have to also check कि वो उसको मास्टर डाटा में करेक्टली फीड हुआ है या नहीं हुआ. अगर वहां पे मास्टर डाटा में बैंक्स ने एक ही टाइप का कर रखा है फॉर एवरी स्टेट, देन इशू विल बी देयर. तो आप करेक्टली आपको एनपीए नहीं क्लासीफाई कर पाओगे. तो एसएलबीसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप एसएलबीसी की वेबसाइट पे जा सकते हो, उनकी गाइडलाइंस चेक कर सकते हो. यू कैन आस्क फ्रॉम द बैंक मैनेजर जिस ब्रांच का आप ऑडिट कर रहे हो. देन कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट. तो एग्रीकल्चर क्रेडिट कौन सा एग्रीकल्चर क्रेडिट है? तो दीज टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट्स आप चेक कर सकते हो. फॉर्म क्रेडिट टू इंडिविजुअल फार्मर्स, देन फॉर्म क्रेडिट टू कॉर्पोरेट फार्मर्स, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, ancillary services, small and marginal farmers, lending by banks to NBFC and MFIs for all lending in agriculture. तो इसको एक बार क्विकली हम चेक करते हैं, देन विल कम टू द आरएक नॉर्म्स. तो मींस माय ओनली पर्पस क्यों मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ कि यू शुड नो कि वेदर दिस इज द एग्रीकल्चर क्रेडिट और नॉट. अदरवाइज अगेन आई एम सेइंग ऑल credits to the farmers are not the agriculture credits. So first is loan to individual farmers. लोन टू इंडिविजुअल फार्मर्स में क्या है? इंक्लूडिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, joint liabilities groups, and proprietorship firms of the farmers directly engaged into agriculture and allied activities. Allied activities में कौन कौन सी है? Dairy, fishery, animal husbandry, पोल्ट्री फॉर्म्स, बुक कीपिंग एंड सेरिकल्चर्स. और ये जो अलाइड एक्टिविटीज हैं, दीज आर आल्सो फॉर एग्रीकल्चर पर्पस. तो अगर ये डायरी, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी अगर आप कोई क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हो, देन मीन्स इट्स फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस. सो इट आल्सो इंक्लूड्स क्रॉप लोन्स, कि आप कोई ट्रेडिशनल, नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन या फ्लोरिकल्चर एंड द अलाइड एक्टिविटीज के लिए लोन प्रोवाइड करते हो, देन इट्स द लोन टू द फार्म क्रेडिट. तो उसमें कौन कौन से हो सकते हैं? फूड क्रॉप्स में कौन कौन सी फूड्स है आपकी? वीट, राइस, इसमें पल्स रह सकता है, कैश क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, हॉरिकल्चर्स, जैद क्रॉप्स. तो अलग अलग टाइप की क्रॉप्स हैं. एंड देन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज. जैसे किसी ने कोई एग्रीकल्चर पर्पस के लिए कोई मशीनरी कुछ उसमें इम्प्लीमेंट्स के लिए एंड डेवलपमेंट लैंड फॉर द एलाइड एक्टिविटीज. देन लोन फॉर pre and post harvest activities, then loan to distressed farmers, then loan under Kisan credit card scheme. This Kisan credit card is also very important. इसके ऊपर भी पूरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे भी आपको काफी सारे एनपीएस के इश्यूज मिलेंगे, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे. Then loan to small and marginal farmers for the purchase of land for agriculture purpose, and then loans against pledge hypothecation of agriculture produce. जैसे आपके कोई प्रोड्यूस है, आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसके वेयर हाउस रिसिप्ट्स के बेसिस पे भी, और अप टू ए नॉट एक्सीडिंग a month of 12 months and subject to the limit of 50 lakh rupees. Then अगर loans to farmers for installation of stand-alone solar agriculture pump and for solarization of grid connection agriculture farm, then also it's for the farm credit to the individual farmers. Then loans to farmer for installation of solar power plants. Then the self-housing groups or joint liability groups of individual farmers, providing banks maintain disaggregate data of such loans. And then farm credit to corporate farmers. जो कॉर्पोरेट फार्मर्स को अगर हम कुछ क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से हैं कॉर्पोरेट फार्मर्स में? फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज ऑफ इंडिविजुअल फार्मर्स, जो पार्टनरशिप फर्म्स है फार्मर्स की, एंड कोऑपरेटिव ऑफ द फार्मर्स. तो डायरेक्टली एंगेज्ड जितने भी हैं, जैसे फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, या कंपनीज हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं ऑफ द फार्मर्स, they should directly engage into the agriculture and the allied activities. Like वही जो पीछे हमने डिस्कस किया था, allied activity में कौन सी थी? डेयरी, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, बुक कीपिंग एंड देन सेरिकल्चर, up to an aggregate limit of rupees 2 crore per borrower for which activities? Following activities. एक तो वही आपके जो क्रॉप लोन है, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया था. देन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, लोन टू प्री एंड
पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज हैं, जो पीछे जो हमने डिस्कस किया था, दैट्स फॉर द इंडिविजुअल फार्मर्स, यहाँ पे कॉर्पोरेट फार्मर्स। और जो फोर्थ में वहां पे था 50 लाख, यहाँ पे 75 लाख रुपीज। देन जो यूसीबी बैंक्स है आर नॉट परमिटेड टू लेंड टू द कोऑपरेटिव ऑफ द फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एग्रीकल्चर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर परचेज करना है, तो उसमें एग्रीगेट सैंक्शन लिमिट ऑफ ₹100 करोड़ पर बोरोवर फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम विल अप्लाई। तो वो किस किस पर्पस के लिए हो सकते हैं? लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, कि अगर आपने कोई कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स या फिर कोई वेयर हाउस, मार्केट यार्ड्स, गोडाउन रख सकता है, तो उस पर्पस के लिए 100 करोड़ पर बोरोवर। देन सोइल कन्वर्सेशन एंड वाटरशेड डेवलपमेंट, then plant tissue culture, seed production, production of biopesticides, and another one is loan for construction of oil extraction processing units। तो इन सब के लिए भी आपको अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एक कुछ जो एलाइड सर्विस, उसके एंसिलरी सर्विसेज है, उसमें लोन्स अप टू 5 करोड़ टू कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स for the purchase of produce of their members, loans for setting up agricultural clinics and agri business centers, loan for food and agro processing up to an aggregate sanction limit of ₹100 crore per borrowers, then loans to custom service units managed by individuals। तो ये सारी उसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर रखी है कि विच आर द लोन्स आर क्रेडिट टू द फार्मर्स। देन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हमने अभी डिस्कस किया था, कौन कौन से स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके लिए भी कुछ स्पेशल क्रेडिट्स हैं। देन लोन टू द सेल्फ हाउसिंग ग्रुप्स, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए लोन अप टू 2 लाख रुपीज टू इंडिविजुअल्स ओनली एंगेज इन allied activities without any accompanying land holding criteria, then loan to FPO, FPS, then lending by banks to NBFC and MFI for own lending in agriculture। उसमें भी ये टू टाइप्स के आपको बता रखे हैं बैंक क्रेडिट्स extended to the registered NBFC, MFIs and other MFIs, society, trust, etc., which are the member of RBI recognized SRO for the sector for own lending to individual and also to the member of SHGs, JLGs। और जो नेक्स्ट है बैंक क्रेडिट टू रजिस्टर्ड एनबीएफसी टूवर्ड्स ओन लैंडिंग, टर्म लैंडिंग कंपोनेंट अप टू एग्रीकल्चर विल बी अलाउड अप टू ₹10 लाख। तो ये सारे के सारे क्राइटेरिया हैं आपके कि विच आर द फार्म क्रेडिट्स टू द फार्मर्स। तो दीज काइंड ऑफ, अगर कोई एग्रीकल्चर या फिर एंसिलरी सर्विस एलाइड एक्टिविटीज के लिए अगर लोन प्रोवाइड हो रहा है, तो दीज आर फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर। तो अब हम देखते हैं कि हाउ वी कैन डू द ऑडिट ऑफ द एग्रीकल्चर एडवांसेस। बस स्टार्टिंग में दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, नाउ विल कम ऑन टू अवर पॉइंट कि आपको ऑडिट कैसे करना है एग्रीकल्चर एडवांसेस का। तो वी कैन बाइफरकेट इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज द एडवांसेस सैंक्शन ड्यूरिंग द ईयर। तो जिस ईयर का आप ऑडिट कर रहे हो, उस ईयर में कितने एडवांसेस सैंक्शन हुए। एंड अनदर वन इज एडवांसेस सैंक्शन प्रायर टू करंट पीरियड, कि जो करंट पीरियड से पहले के एडवांसेस हैं, ओल्ड एडवांसेस हैं, उसका ऑडिट कैसे करना है। तो जो करंट ईयर्स की आपकी डिटेल्स है, यू कैन आस्क द बैंक मैनेजर, यू कैन प्रोवाइड द डिटेल। उसका वैसे भी लोन से डिटेल निकाल सकते हो फिनेंशियल से या फिर टीसीएस बैंक से। तो उसमें क्या है, फर्स्ट इज प्री सैंक्शन, अनदर वन इज पोस्ट सैंक्शन। जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था आपने वेबिनार में कि आपको आपको चेक करना है क्रेडिट अप्रेजल, डॉक्यूमेंटेशन, देन रिव्यू, मॉनिटरिंग, सुपरविजन। तो फर्स्ट थिंग इज द लोन एप्लीकेशन। रिमेंबर दिस थिंग, जो आरबीआई का सर्कुलर था रिगार्डिंग द लोन, दिस वन एप्लीकेशन फॉर्म्स, जिस पर आरबीआई ने उनको क्लियर कट मेंशन किया था, दीज फॉर्म्स जो भी आपका लोन एग्रीमेंट है, एवरी कॉलम शुड बी फिल्ड बाय द बैंक्स एंड देन इट शुड बी अप्रूव्ड और साइंड बाय द बोरोवर इटसेल्फ। तो आपको जब चेक करना है, तो वो आपका जो लोन एग्रीमेंट है उसमें पूरी डिटेल्स लाइक क्या उनकी कब उनको पेमेंट्स करनी है, कि रीपेमेंट्स करना है आपका, क्या रीपेमेंट ड्यू डेट्स हैं, व्हाट्स द इंटरेस्ट, व्हाट्स द प्रिंसिपल, एंड देन व्हेन इट वुड बी द एनपीएस, उसकी पूरी डिटेल, एंड देन सिग्नेचर ऑफ द बोरोवर शुड बी देयर। देन क्रेडिट अप्रेजल। इन क्रेडिट अप्रेजल यू हैव टू चेक जो एडवांस दे रहे हैं, दैट्स फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर एडवांस। उसमें आपके जो प्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हैं, प्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स या फिर कॉपी ऑफ खसरा एंड खतौनी, किस पर्पस आपके किस लाइक शॉर्ट टर्म
क्रॉप लोन है या लॉन्ग टर्म क्रॉप लोन है या मीडियम टर्म या फिर कोई उन्होंने ट्रैक्टर मशीनरी सेक्टर परचेज के लिए, दैट ऑल फ्रॉम द क्रेडिट अप्रेजल्स में चेक करना है कि कितनी पावर है मैनेजर की, कहाँ से होके आ रहा है, तो दैट यू हैव टू चेक। देन डॉक्यूमेंटेशन, कि डॉक्यूमेंटेशंस उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल लोअर सर्च रिपोर्ट है या फिर कोई क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी की रिपोर्ट्स है या फिर उसकी कॉपी ऑफ खसरा, जो आपकी जो लैंड है उसकी पूरे पूरे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है या नहीं है। देन कुछ एक्सटर्नल रिपोर्ट्स, जो आपका जो एग्रीकल्चर ऑफिसर विजिट करेगा उसकी रिपोर्ट्स, इंस्पेक्शन रिपोर्ट इज अवेलेबल विद यू और नॉट। देन डिसबर्समेंट, कि आपने जो डिसबर्समेंट कर रहे हैं, यू हैव टू चेक व्हाट्स द एंड यूज, कि वो आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दे रहे हैं तो उसका एंड यूज इज फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर आर नोट। एंड देन जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ है तो वो सेविंग बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर हुआ है जो फार्मर्स के, तो इसको आप टेस्ट चेक बेसिस पे चेक कर सकते हो। एंड देन जो ओल्ड अगर लोन है तो उसके क्लासिफिकेशन, आपके क्या क्लासिफिकेशन है। देन जो आपके सैंक्शन लेटर में टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन है, वेदर इट्स फुलफिल्ड और नॉट। कई बार होता है कि वो उन्होंने खुद एक्सपेंसेस किए हैं, उसका रिम्बर्समेंट है, तो दैट यू हैव टू चेक। देन प्रोविजनिंग एज पर द आईरेक नॉर्म्स, देन इनकम रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, दैट यू कैन चेक फ्रॉम द ऑडिट ऑफ द एग्रीकल्चर एडवांस। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट थिंग जो मैं अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि all advances to the farmers are not the agriculture advances. You have to check कि कहीं ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि आई टोल्ड यू उनके लिए आरबीआई ने क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है कि यू हैव टू गिव सम proportionate some percentage of your total advances to the प्रायोरिटी सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर एडवांसेस इज द प्रायोरिटी सेक्टर। सो आपको चेक करने हैं कि वो दैट्स प्रायोरिटी सेक्टर जो आपने लोन प्रोवाइड किए हैं जो फार्मर्स को, वेदर नॉन एग्रीकल्चर एडवांसेस को तो एग्रीकल्चर में नहीं डाल रखा, दैट यू हैव टू चेक। देन सैंक्शन अमाउंट, जो सैंक्शन अमाउंट है ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स की आप कितना सैंक्शन कर रहे हो, दैट डिपेंड्स कि वो जो उनकी लैंड्स अंडर कल्टीवेशन या उसका क्रॉप बीइंग कल्टीवेटेड, सिंगल क्रॉप है, मल्टीपल क्रॉप्स है, तो उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। और उसके भी जो उसकी सिक्योरिटी है, प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होगी, वो आपकी स्टैंडिंग क्रॉप्स, जो स्टैंडिंग क्रॉप्स होगी एंड द कल्टीवेशन, और जो उसमें स्टैंडिंग क्रॉप्स अंडर कल्टीवेशन है। एंड यू हैव टू चेक कि जो आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर है वो प्री विजिट एंड पोस्ट सैंक्शन विजिट अगर उनकी हो रही है या कोई रिपोर्ट्स है, दैट्स विद द बैंक। एंड देन डिसबर्समेंट, डिसबर्समेंट आई टोल्ड यू कि उसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे भी डिसबर्समेंट होती है, कि लाइक आपको सोइंग के टाइम पे या फिर उसके बाद यू नीड दिस वन कुछ एडवांसेस, तो दैट स्टेजेस यू हैव टू चेक। एंड देन सम टाइम जो फार्मर्स हैं इट्स एक्सपेंस फ्रॉम देयर ओन पॉकेट, देन दे कैन रिम्बर्समेंट, उसकी डिटेल चेक करनी है। तो इन ऑल द कंडीशंस auditor have to check whether all the document evidence are with the bank itself or not। and then जो उनकी सिक्योरिटी है, जो मैंने आपको बताया कि वो आपकी क्रॉप है या फिर कोई लैंड है, तो दैट्स लीगली इन्फोर्सेबल और नॉट। और जो स्टैंडिंग क्रॉप या फिर एग्रीकल्चर मशीनरी है उसके ऊपर हाइपोथिकेशन या फिर एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर मॉर्गेज चार्जेस हुए हैं या नहीं हुए। एंड आल्सो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो पीछे भी हमने डिस्कस किया था, लाइक लैंड रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट्स, उसकी डिटेल्स है बैंक के पास नहीं। लैंड टैक्स असेसमेंट या उसकी जो पेमेंट रिसिप्ट है बाय द फार्मर्स, दैट्स अवेलेबल और नॉट। कॉपी ऑफ रिकॉर्ड विद द सब रजिस्टर, original copy of the title deeds, then search of title deeds and the legal opinion from the advocates, then valuation of land from the valuers of the bank's approval panel। जो ये आप वैल्यूएशन रिपोर्ट देनी है, जो आपके जितने भी बैंक्स के पैनल पे अप्रूव्ड वैल्यूअर्स हैं उनकी रिपोर्ट्स अवेलेबल है या नहीं है। देन अनदर वन इज द जो हार्वेस्टिंग है आपकी, जो आप farmers will repay you, that's also include that time period for the sale proceed of crop। जो फर्स्ट टाइम आप उसको लोन प्रोवाइड कर रहे हो, सोइंग के बाद हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद सेल प्रोसीड, देन द फार्मर विल रीपे द लोन। एंड जो कुछ लोन्स पीछे भी हमने एक बार डिस्कस किया था कि अगर कुछ एग्रीकल्चर लोन्स इज प्रोवाइडेड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ एनएससी, किसान विकास पत्र, एफडी, तो it doesn't mean these are not agriculture loan, these are the agriculture loan, ये agriculture loan है। and as a auditor we should carefully check कि agriculture loans में ही mention है या नहीं है। then IREC norms,
जो पीछे अभी स्तुति जी बता रही थी, तो आयरेक नॉर्म्स है, इनकम रिकॉग्निशन एंड क्लासिफिकेशन नॉर्म्स फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो दीज आर द स्टेप इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर। जो हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं उसमें जो प्लगिंग, सोइंग, एडिंग मैन्योर्स, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, देन स्टोरेज एंड सेल, दीज आर द प्रोसेस। तो इसमें क्या है, तो एनपीए जो हम क्लासिफाई करते हैं, एनपीए कैसे क्लासिफाई करना है एग्रीकल्चर लोन को, तो उसको हमें चेक करना है नेचर ऑफ क्रॉप एंड द ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप, मतलब क्रॉप सीजन कौन सा है उसका। तो दैट्स डिसाइडेड बाय द एसएलबीसी, स्टेट लेवल बैंकर कमिटीज। तो आपको उसकी गाइडलाइंस चेक करनी है एंड पैरामीटर्स को जो मास्टर डाटा सीबीएस में है उसमें चेक करना है कि करेक्टली है या नहीं। अगेन आई एम सेइंग इट कैन बी डिफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। केरला में कुछ डिफर हो सकता है, महाराष्ट्र में कुछ और हो सकता है क्रॉप सीजन, और हरियाणा या पंजाब में कुछ और क्रॉप सीजन हो सकता है। इसके ऊपर भी हम अभी एग्जांपल लेते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स कौन सी है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स में विच द सीजन लॉन्गर देन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म क्रॉप्स में विच आर नॉट द लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स, मतलब जिनका सीजन लेस देन 1 ईयर है। एंड देन क्रॉपिंग पैटर्न, कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, कि जैसे किसी लैंड पे एक से ज्यादा क्रॉप्स हो रही है तो उसको मल्टीपल या डबल क्रॉपिंग पैटर्न कह रहे हैं। ये सिंगल ही अगर उसके ऊपर हो रहा है तो सिंगल मोनोक्रॉपिंग पैटर्न हो गया। देन जो पीरियड अप टू हार्वेस्टिंग टू द क्रॉप रेस्ट इंक्लूडिंग पीरियड रिक्वायर्ड फॉर द सेल ऑफ क्रॉप, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी वो डिफर करती है, आपको चेक करना है, तो ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन हाँ, तो इंडिया में जो हमारी जो क्रॉप्स है, इट कैन बी, जो मेनली जो क्रॉप्स है, इट्स शॉर्ट टर्म में कौन कौन सी है, लॉन्ग टर्म में कौन कौन सी है। शॉर्ट टर्म में आइदर से खरीफ या फिर रबी। तो खरीफ में जो जिसको हम कहते हैं मानसून क्रॉप, या फिर रबी को हम कहते हैं विंटर क्रॉप। तो और जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में कौन सी होंगी, या तो शुगर केन या फिर बनाना। तो सोइंग टाइम जो है खरीफ का, वो अगेन आई एम सेइंग डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। केरला में मानसून जल्दी आ गया तो हो सकता है वहां पे मई में हो जाएगा वहां पे उनका सोइंग टाइम। हरियाणा पंजाब में लेट आए तो उनका जून जुलाई में हो सकता है। एंड रबी का सेम थिंग, सितंबर अक्टूबर नवंबर, वो उसी के अकॉर्डिंगली है, अलग अलग स्टेट वाइज। हार्वेस्टिंग टाइम वो भी स्टेट वाइज डिफर करता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, यहाँ पे रबी में फेब मार्च अप्रैल। और इसका एग्जाम्पल खरीफ के कौन कौन से एग्जाम्पल है, राइस, बाजरा, कॉटन, अरहर। रबी के कौन से एग्जाम्पल है, व्हीट, मस्टर्ड, पीस, ओट्स एंड शुगर केन। कब इसका सोइंग टाइम होता है, जून एंड जुलाई। दीज आर लॉन्ग टर्म क्रॉप। और इनका हार्वेस्टिंग टाइम पता है नेक्स्ट नवंबर टू फेब के बीच में, डिपेंड्स ऑन स्टेट टू स्टेट। बनाना का सोइंग टाइम है जुलाई एंड हार्वेस्टिंग टाइम नेक्स्ट सितंबर। तो अगेन इट्स मेंशन देयर, जो आपका क्रॉप टाइम इसका सोइंग टाइम है, हार्वेस्टिंग टाइम है, इट डिफर फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर स्टेट। दैट्स डिसाइडेड बाय द एसएलबीसी। और वो भी कि मल्टीपल उसमें है या फिर सिंगल क्रॉप सीजन। देन जो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं जो आपके खरीफ में है, राइस, बाजरा, मेज, कॉटन। तो उसमें टाइम दे रखा है मई टू अगस्त सोइंग टाइम, हार्वेस्टिंग टाइम अक्टूबर टू जनवरी। बाजरा का sowing time is June to August, harvesting time September to November. And then maize का sowing time is May to July, harvesting time October to December. Cotton का May to July, harvesting time October to March. तो उसी के अकॉर्डिंगली जो सेम क्रॉप वन उसमें स्टेट में डिफरेंट टाइम है, अनदर स्टेट में डिफरेंट टाइम है, दैट्स डिसाइड बाय द एसएलबीसी। देन रबी का भी ज्वार, व्हीट, मस्टर्ड। इसमें ज्वार का सोइंग टाइम है सितंबर टू अक्टूबर, हार्वेस्टिंग जनवरी टू मार्च। व्हीट का अक्टूबर टू दिसंबर, हार्वेस्टिंग फेब टू अप्रैल। मस्टर्ड का सितंबर टू नवंबर, हार्वेस्टिंग टाइम जनवरी टू मार्च। एंड देन जो इंटरेस्ट एप्लीकेशन है, तो इंटरेस्ट एप्लीकेशन जैसे फॉर एग्जांपल अदर क्रेडिट या अदर एडवांसेस हैं, उसी के अकॉर्डिंगली वहां पे मंथली इंटरेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल। दैट्स टू बी डिसाइडेड बाय द बैंक्स, कि आप ईयरली है या फिर जो अलाइड एक्टिविटीज है उसमें क्वार्टरली ले रहे हो या बायो एंट्री ले रहे हो। एंड देन कंपाउंडिंग जो आपका है इट्स नॉट परमिटेड अनलेस ओवरड्यू है। एंड इन केस ऑफ जो हमने पीछे डिस्कस किया था स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर्स, उस केस में जो आपका इंटरेस्ट है अगर उसको प्रिंसिपल इंटरेस्ट वो उससे एक्सीड नहीं होगा प्रिंसिपल अमाउंट से। देन जो अगर खरीफ है,
इसमें कुछ एग्जांपल हैं दैट कैन बी डिफर, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिए। तो उसका टाइम डिसाइड बाय द बैंक, जैसे खरीफ अप्रैल टू सितंबर है, तो अगर इंटरेस्ट ईयरली है तो उसका ड्यू डेट 31 मार्च को होगा। अगर रबी है अक्टूबर टू मार्च 30 जून होगा, हॉर्टिकल्चर में 31 मार्च। तो इट कैन बी डिफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक एंड वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ऐसा कुछ नहीं है कि यही ही होगा। देन अब इसका है एनपीए, जो स्तुति जी बता रहे थे, वो शायद अभी है नहीं थी, तो आई एम टेलिंग हर कि ये जो 2.5 ईयर का ऐसा कुछ नहीं है, वो एक लेमन लैंग्वेज में हम कह देते हैं, जो आईरेक नॉर्म्स है, ये जो आरबीआई का सर्कुलर है, उसके अकॉर्डिंगली व्हेन द अकाउंट्स बिकम द एनपीए। तो इन केस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लोन, अगर कोई शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लोन है, तो देन लोन ट्रीटेड एज एनपीए if the installment of principal or interest thereon remains overdue from the repayment due date for two crop season. Remember this thing, this is very very important. टू क्रॉप सीजन स्पेशली मेंशन है, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपको टू पेमेंट पीरियड है, यहाँ पे मेंशन है टू क्रॉप सीजन। एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में loan treated as NPA if the installment of principal or interest thereon remains overdue from the repayment due date for one crop season. इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब भी ऑडिट के लिए जाओगे, मैनेजर तो आपको यही कहेगा, सर कभी एग्रीकल्चर एडवांसेस एनपीए नहीं होते, ये हमारे बैंक का सर्कुलर है, दिस इज लाइक दिस। बट avoid all these things, you have to only focus on the आरबीआई सर्कुलर। कोई भी बैंक आरबीआई के अगेंस्ट नहीं जा सकता, अपना सर्कुलर नहीं कर सकता, विच आर ओवर रूल द आरबीआई सर्कुलर। तो दिस इज फॉर द एनपीएस के ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो रिमेंबर, टू क्रॉप सीजन या फिर वन क्रॉप सीजन। तो ये एग्जांपल जो है आपके एग्री उसमें आईसीआई गवर्नेंस नोट में है, तो मैं थोड़ा उससे डिफर करता हूँ, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। दिस फर्स्ट एग्जांपल इज फॉर द सिंगल मोनोक्रॉप, कि वहां पे सिर्फ एक ही क्रॉप आती है, एक ही क्रॉप पैटर्न है, खरीफ है या फिर रबी है, मल्टीपल क्रॉप नहीं है। मल्टीपल का भी अभी हम एग्जांपल लेंगे। दिस एग्जांपल इज फॉर द सिंगल मोनोक्रॉप। तो अगर कोई खरीफ है, तो उसमें पहले जो आपको मेंशन है वो डिपेंड स्टेट टू स्टेट, एंड दिस इज ओनली द एग्जांपल। हो सकते हैं बैंक टू बैंक या स्टेट टू स्टेट, सैंक्शन टाइम अलग हो, हार्वेस्टिंग टाइम अलग हो, रिपेमेंट ड्यू डेट अलग हो। तो हम सिर्फ एक एग्जांपल ले सके एंड फ्रॉम द आईसीआई गाइडेंस नोट। तो इसमें अगर खरीफ है तो उसमें सैंक्शन डेट जो आपकी है बिटवीन द अप्रैल 20 टू 30 सितंबर, और हार्वेस्टिंग टाइम क्या है उसका, सितंबर। हार्वेस्टिंग टाइम सितंबर का। रबी में भी अक्टूबर टू मार्च सैंक्शनिंग है, उसी टाइम में सोविंग हो जाएगी, तो हार्वेस्टिंग टाइम उन्होंने मेंशन कर रखा है मार्च 21। तो रीपेमेंट डेट फर्स्ट वाले केस में हार्वेस्टिंग के बाद 3 मंथ्स बाद 31 दिसंबर, और मार्च के जून 30 जून। तो इन्होंने जो देखो, आप एक बार जस्ट गो थ्रू दिस, हार्वेस्टिंग के बाद रीपेमेंट डेट है 31 दिसंबर एंड 30 जून। और डेट ऑफ इरेगुलरिटी, यू नो, जो भी एक नया पैटर्न आरबीआई का सर्कुलर आया था पीछे, तो उसमें दे हैव सेंट डे एंड प्रोसेस। तो अगर डे एंड प्रोसेस तक आपकी पेमेंट नहीं आती, तो सेम डे ही आपकी जो अगर ड्यू है तो सेम डे ही ओवर ड्यू हो जाएगी। तो अगर आपकी डेट ऑफ इरेगुलरिटी 31 दिसंबर है, अगर आपने रीपेमेंट 31 तक नहीं किया, तो डेट ऑफ ओवर ड्यू भी आपकी 31 दिसंबर हो जाएगी। तो अब इसके अकॉर्डिंगली, बिकॉज शॉर्ट टर्म क्रॉप है, तो टू क्रॉप सीजन, बट हियर दे हैव मेंशन टू क्रॉप रीपेमेंट टाइम। तो मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे होना चाहिए था हार्वेस्टिंग टू टाइम, यहाँ पे 30 सितंबर के बाद फर्स्ट क्रॉप सीजन सितंबर 21, यहाँ पे सितंबर 22। बट दे हैव मेंशन 31 दिसंबर, यहाँ पे फिर 31 दिसंबर फर्स्ट क्रॉप, 31 दिसंबर 21, एंड हियर 31 दिसंबर 22। तो एनपीए कब होगा आपका, 31 दिसंबर 22 में, विच आर एज पर माई व्यूज only they are the two crop season, not the two crop repayment time. एंड रबी के केस में भी सेम, कि रबी के केस में अगर सैंक्शन डेट 1 अक्टूबर 22 तो 31 मार्च के बीच में है, रबी सैंक्शन है और आपकी सोइंग है, हार्वेस्टिंग टाइम मार्च 21 है, रीपेमेंट टाइम आपको मिला है 30 जून, देन डेट ऑफ इरेगुलरिटी 30 जून, फर्स्ट क्रॉप सीजन आपका उन्होंने ले लिया 30 जून 22, सेकेंड वाला 30 जून 23, एंड इट्स द 30 जून 23। बिकॉज यू नो
व्हाट्स द पर्पस कि आप शुरू में आप उनको रीपेमेंट टाइम दे रहे हो आफ्टर हार्वेस्टिंग, दैट्स ओनली कि फार्मर कैन सेल, आप अपनी जो प्रोड्यूस है क्रॉप है उसको सेल करो एंड रीपे द अमाउंट। बट इट्स नॉट लाइक दैट कि आप एवरी टाइम एनपीए के लिए भी हम आपको एक्स्ट्रा टाइम दें कि फर्स्ट क्रॉप सीजन में भी आप सेल करो फिर पेमेंट दो। दैट्स नॉट दैट यूर रीपेमेंट टाइम, दैट्स ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एनपीए। देन लॉन्ग टर्म क्रॉप सीजन, उसमें 1 ईयर जो वन क्रॉप सीजन का है, तो उस केस में ये आपके सामने एग्जांपल है। अब देखते हैं कोई मल्टीपल क्रॉप सीजन कि पहले खरीफ फिर रबी, अगर मल्टीपल क्रॉप सीजन है देन रबी के बाद खरीफ की मतलब 1 ईयर में 2 क्रॉप्स आए वहां पे। तो इस केस में सैंक्शन डेट कौन सी है आपकी, 1 अप्रैल टू 30 सितंबर 2020, रबी में 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, और हार्वेस्टिंग टाइम यहाँ पे September 20 और यहाँ पे March 21, रीपेमेंट डेट 31 दिसंबर, यहाँ पे 30 जून। अब इसके बाद खरीफ, यहाँ तक तो आपका रीपेमेंट खरीफ का था। अब यहाँ पे डेट ऑफ इरेगुलरिटी सेम डे हो गया आपका 31 दिसंबर 30 जून। बट यहाँ पे जब फर्स्ट क्रॉप सीजन, अब इसके बाद कब होगा, खरीफ के बाद रबी कब आएगी, 30 जून 2021, ये भी आपका रीपेमेंट पीरियड टाइम ले रहे हैं यहाँ पे। एंड सेकंड कब होगा आपका 31 दिसंबर 2021। तो आपका एनपीए कब होगा, 31 दिसंबर। जो मेरे अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे मार्च, तो यहाँ पे फर्स्ट पूरा March 21 आना चाहिए। एंड सेकंड में आपका जो ये सितंबर है तो यहाँ पे सितंबर, उसके बाद 30 सितंबर या 31 अक्टूबर आना चाहिए। तो बट एज पर आईसीआई गाइडेंस नोट वी हैव टू गो देयर। जो मैंने एग्जांपल दिया था दिस इज द एग्जांपल, इसको एक बार हम चेक करते हैं कि इसमें मैंने अलग अलग डेट्स ले रखे हैं कि अगर कोई फाइनेंसिंग डेट खरीफ या रबी, खरीफ में आपकी फाइनेंसिंग डेट अगर 1 जून और रबी में 1 अक्टूबर, इट अगेन आई एम सेइंग इट वेरीज स्टेट टू स्टेट, बैंक टू बैंक, कि क्या उन्होंने आपका एसएलबीसी ने कौन सा मेंशन किया खरीफ के लिए, या फिर उसका रीपेमेंट ड्यू डेट क्या करी हुई है। तो यहाँ पे सीजन स्टार्ट आपका कब से है, जून से, यहाँ पे अक्टूबर से। हार्वेस्टिंग टाइम कब होगा आपका यहाँ पे, अक्टूबर नवंबर में, यहाँ पे रबी में मार्च में। और रीपेमेंट डेट कब होगी इसकी, 31 मार्च, यहाँ पे 30 जून। अब फर्स्ट क्रॉप सीजन, जो फर्स्ट क्रॉप सीजन आफ्टर ड्यू डेट, इसके बाद ड्यू डेट कब आएगा, ये जो फर्स्ट क्रॉप सीजन इसी का ही आएगा आपका June 21। हम यहाँ पे रीपेमेंट नहीं ले रहे, यहाँ पे अगर अगर एज पर आईसीआई गाइडेंस नोट ले तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 31 मार्च 2022, बट एयर इट्स अक्टूबर नवंबर 21। तो नेक्स्ट सीजन कब स्टार्ट होगा आपका, अक्टूबर नवंबर हार्वेस्टिंग, क्योंकि 2 क्रॉप सीजन है, 2 क्रॉप सीजन हार्वेस्टिंग तक, अक्टूबर नवंबर 22। तो कब आ जाएगा ये आपका, 31 दिसंबर 22 को आपका इट बिकम्स द एनपीए। और रबी में भी सेम थिंग, आपका रीपेमेंट ड्यू डेट 30 जून। तो ये सीजन नेक्स्ट कब स्टार्ट होगा, दिस इज फॉर सिंगल क्रॉप, अक्टूबर 21 और नेक्स्ट वाला अक्टूबर 22। तो आपका हार्वेस्टिंग टाइम March 23, तो यहाँ पे आपका 31 मार्च 23 को आपका रीपेमेंट। तो अगर आप उसको एक जो स्तुति ने बोला था लेमन लैंग्वेज में, वहां पे अगर हम ले तो इट्स से 21 मंथ्स, हॉरिकल्चर में 24 मंथ्स, शुगर केन में 18 मंथ्स। तो एक ये लेमन में हम ले सकते हैं कि इससे पहले अगर आपका मल्टीपल क्रॉप है, या फिर ये सिंगल क्रॉप में था और मल्टीपल क्रॉप में है, तो डिफरेंट टाइप, वो 21 24 में, ये सिंगल मोनोक्रॉप में था। एंड मल्टीपल क्रॉप में दिस आर द मल्टीपल क्रॉप। वहां पे भी अगर हम मल्टीपल क्रॉप में से देखें इस एग्जांपल्स को, तो यहाँ पे जो आपका फाइनेंसिंग डेट है 1 जून 20, सीजन स्टार्ट June 20 को, हार्वेस्टिंग टाइम अक्टूबर नवंबर 20, रीपेमेंट डेट 31 मार्च। अब खरीफ के बाद कब आएगा, रबी, रबी यहाँ पे आ जाएगा आपका अक्टूबर 20। ये इनका हार्वेस्टिंग टाइम कब है, अप्रैल मई। एंड देन नेक्स्ट रबी के बाद जो अगर मल्टीपल क्रॉप में खरीफ, तो खरीफ का कब है, जून में, और हार्वेस्टिंग टाइम कब है, अक्टूबर नवंबर। तो 31 दिसंबर को दैट विल बी एनपीए। तो रबी में भी अगर मल्टीपल क्रॉप है, रबी फिर खरीफ, तो इस केस में 30 जून। तो दिस इज द आंसर जो हम देख रहे हैं एज पर एनपी आइडेंटिफिकेशन। तो इट्स ऑन यू कि आप अकॉर्डिंगली इनके थ्रू ले सकते हो। और आई हैव डिस्कस द सेम विद द सीएसए ऑफ द एसबीआई, देन ही सेड इट्स ओके कि आप इसके अकॉर्डिंगली भी आप चेक कर सकते हो, बिकॉज एज पर द आरबीआई सर्कुलर इट्स ओनली द टू क्रॉप सीजन, टू क्रॉप सीजन इज देयर, नॉट द टू क्रॉप टाइम्स, टाइम के अकॉर्डिंगली लिए। तो दिस इज रिगार्डिंग द example of the NP identification in case of एग्रीकल्चर लोन्स। तो उस केस में अगर कोई टर्म लोन है, टर्म लोन आपका है उसके अकॉर्डिंग भी
तो अगर वो विद क्रॉप लोन लिया है या विदाउट क्रॉप लोन लिया है, तो उसमें भी हम चेक कर सकते हैं कि अगर कोई टर्म लोन लिया है, टर्म लोन में तो उसको भी वो वाले आईरेक नॉर्म्स नहीं चलेंगे जो हमारे हैं, वो भी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो है टर्म लोन उसी के अकॉर्डिंगली होंगे। वन क्रॉप सीजन या टू क्रॉप सीजन किस पर्पस के लिए आप दे रहे हैं, अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए जैसे खरीफ के लिए लिए, ये शुगर केन लिया है और टर्म लोन ये कब लिया, 1 मई 2020 को, ये विदाउट क्रॉप लिया है, और टर्म लोन की रीपेमेंट डेट कब है, 30 जून 2022, एंड इस केस में भी 30 जून 2022। एनपीए कब होगा, अगर ये जो हमने विद इन उसमें लिया था 24 मंथ्स एज अकॉर्डिंग टू आईसीआई 2 इयर्स में, तो ये 31 दिसंबर 2022 को हो जाएगा। तो वन अकाउंट बिकम एनपीए। अगर यहाँ पे आपका ये खरीफ वाला शॉर्ट टर्म, बिकॉज इट्स ए विद क्रॉप लोन, तो वन अकाउंट बिकम एनपीए, ऑल अकाउंट्स बिकम एनपीए। तो उस केस में आपका टर्म लोन भी एनपीए हो जाएगा, उसकी भी डेट सेम डेट हो जाएगी 31 दिसंबर को, क्योंकि यहाँ पे खरीफ का लोन आपका हो गया, तो टर्म लोन विल आल्सो बिकम द एनपीए। बट इन दिस केस अगर आप विदाउट क्रॉप सीजन ले रहे हैं, तो उस केस में क्या है, 18 months for the sugarcane and 21st month for the kharif loan, whichever is lower, उस केस में that account becomes the NPA because it's a without crop loan है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपने किस में देखना है, लो शुगर केन में लॉन्ग टर्म लोन या उसमें शॉर्ट टर्म क्रॉप में, तो whichever is level, तो ये जो डेट ऑफ एनपीए होगी 31 दिसंबर 2023 होगी। क्लियर? नाउ विल कम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसान क्रेडिट कार्ड। अगर कोई और आपकी क्वेरी है, देन यू कैन आस्क आल्सो। केसीसी, केसीसी आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केसीसी में एक जो आरबीआई का सर्कुलर है, इसमें रिवाइज हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलर। जो पहले सर्कुलर था दैट वाज ऑन द डेटेड 4 जुलाई 2018, देन उसके बाद एक और है डेटेड 4 फेब 2019, एंड देन इस सर्कुलर में केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड है, इस सेम लाइक जब आपका हम क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, तो पर्पस क्या है फॉर द इश्यू ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड। तो किसान क्रेडिट कार्ड इज बेसिकली टू प्रोवाइड द टाइमली सपोर्ट टू द फार्मर्स अंडर सिंगल विंडोज। तो उसमें उसमें जो किसान क्रेडिट है, इट्स द मिक्सचर ऑफ द आपकी जो एक सीसी लिमिट है एंड आल्सो द टर्म लोन, कि आप उसको शॉर्ट टर्म यूज भी कर सकते हो, उसमें आपकी एक लिमिट है, कैसे लिमिट फिक्स होती है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो केसीसी जो आपका शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट्स है, शॉर्ट टर्म में कौन कौन सी होंगी, जो आपकी शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट है फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। आपको एक क्रेडिट कार्ड मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग उसकी लिमिट्स होगी, तो उसका कैसे आयरेक नॉर्म्स है, कैसे एनपी होगा, वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो पर्पस जो है उसके लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट में कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन, जो फार्मर्स की हाउस होल्ड है कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स है, वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स एंड एलाइड टू द एग्रीकल्चर, देन लॉन्ग टर्म जो क्रेडिट लिमिट है, investment credit requirement for agriculture and allied activities. These are the short and the long term. Then जो केसीसी की एलिजिबिलिटी क्या है, हु आर एलिजिबल फॉर द केसीसी, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ भी है, एलाइड एक्टिविटीज के साथ भी है। तो एग्रीकल्चर में कि अगर कोई फार्मर जो ओनर है, या तो मतलब एग्रीकल्चर लैंड है उसके पास, या तो कल्टीवेशन कर रहा है उसके ऊपर, कोई सेम थिंग टेनेंट्स है या शेयर के ऊपर है या और लेसी है, तो या फिर उसका रियल ओनर है, तो उस केस में जो उसकी जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 75 ईयर्स। अगर 60 ईयर्स से ज्यादा उसकी एज है, अबव 60 ईयर्स, तो उस केस में कोई उसका लीगल ईयर्स या फिर कोई फैमिली मेंबर शुड बी द को एप्लीकेंट्स। एंड इन केस ऑफ फिशरीज इसी तरह से अलग अलग उनकी है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिशरीज के लिए, इनलैंड फिशरीज, उसमें फिशर्स फिशर फार्मर्स के लिए क्या है, देन मैरीन फिशर्स के लिए क्या है, तो ये उनका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सेम विद द पोल्ट्री एंड द स्मॉल रूमिनेंट डेयरी फार्म हाउस के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एंड देन जो उसकी लिमिट कैसे डिसाइड करते हैं केसीसी की, वो स्टार्टिंग में इनिशियली जो उसकी स्टार्टिंग में लिमिट है, दैट डिपेंड ऑन द स्केल ऑफ फाइनेंस एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, कि जहां उसकी लैंड है, कौन सी उसकी क्रॉप होगी, क्या क्रॉपिंग पैटर्न है, उसकी हाउस होल्ड पोस्ट हार्वेस्ट कंजम्पशन एक्सपेंसेस, देन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ द क्रॉप, इंश्योरेंस, फार्म एसेट्स, इसके अकॉर्डिंगली इनिशियल लेवल पे कम, एंड देन एवरी ईयर रिव्यू करके उसको इंक्रीज करेंगे। एंड द सेम विद द एलाइड एक्टिविटीज, एलाइड एक्टिविटीज में
It's fixed by the district level technical committee DLTC. And then जो उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फिशरीज है वो स्केल ऑफ फाइनेंस में इंक्लूड recurring cost towards seed, feed, organic and the inorganic for fertilizers, then working capital requirement in case of animal husbandry. Animal husbandry में scale of finance may include recurring cost towards feeding, then veterinary aid, labor, water and electricity supply. तो ये सारा का सारा उसके अकॉर्डिंगली है. देन अगर इसकी जो देखें सिक्योरिटी वगैरह है केसीसी लिमिट में कि क्या प्राइमरी सिक्योरिटी है, क्या कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी है, क्या मार्जिन है. तो अगर अप टू 1.6 लाख लिमिट है तो जो आपकी सिक्योरिटी होगी दैट वुड बी द हाइपोथिकेशन ऑफ द क्रॉप्स. कोई कोलेक्ट्रल नहीं है, कोई मार्जिन नहीं है. अगर वो जो अप टू 3 लाख है विद टाई अप फॉर रिकवरी है तो हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप्स है, कोई कोलेक्ट्रल नहीं है. मार्जिन कैन डिपेंड ऑन द बैंक, बैंक में डिसाइड्स. एंड इन केस ऑफ केसीसी above 1.6 lakh in case of non tie up with the 3 lakh in case of tie up with the advances. तो उस केस में hypothecation of the crops है. collector can also ask by the bank कि वो land को आप collector रखिए and margin also decided by the bank. एंड देन केसीसी का जो रीपेमेंट पीरियड है जो पीछे हमने डिस्कस किया था ए टू ई पॉइंट कि शॉर्ट टर्म के लिए एफ था, लॉन्ग टर्म के लिए. तो शॉर्ट टर्म जो केसीसी है दैट अमाउंट जो उसका एग्रीगेट अमाउंट है इन 12 मंथ्स पीरियड्स में शुड बी एटलीस्ट बी इक्वल टू द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग इन द अकाउंट. तो वंस इन ए ईयर अमाउंट शुड बी नील कि जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग थी इन मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग थी शुड बी नील वंस इन ए ईयर ऑफ द 12 मंथ्स. और लॉन्ग टर्म में जो आपका पीरियड्स है वो 5 इयर्स के लिए है. डिपेंड ऑन द किस पर्पस के लिए या किस उसकी एक्टिविटी के लिए आपने लोन लिया था वो डिपेंड करता है. उसी के अकॉर्डिंगली केसीसी में यू कैन रीपे द अमाउंट. एंड देन जो आपका यू शुड आस्क द बैंक कि जो उसकी जो लिमिट है उसको बाइफरकेट करे इनटू द शॉर्ट टर्म कैश क्रेडिट लिमिट एंड द टर्म लोन लिमिट हो गया. और उसमें जो एग्रीकल्चर जो केसीसी में आपके जो इंटरेस्ट है वो भी सेम एज एग्रीकल्चर एडवांसेस की तरह सेम आईरेक नॉर्म्स एप्लीकेबल्स होते हैं. एंड वो जो अभी हमने कहा था कि वो आपका शॉर्ट टर्म क्रॉप्स है या लॉन्ग टर्म के लिए है उसके शुगर केस या बनाना तो विद इन 12 मंथ्स या उसके 18 मंथ्स के अकॉर्डिंगली तो उसमें आउटस्टैंडिंग जो है दैट शुड बी इक्वल. एंड दैट्स द सेम थिंग जो अभी हमने डिस्कस किया था कि सेम आईरेक नॉर्म्स विल बी एप्लीकेबल केसीसी के ऊपर. जो आपके जो सीसी लिमिट है तो उसमें आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट है और 2 क्रॉप सीजन है या 1 क्रॉप सीजन है जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने शॉर्ट टर्म क्रॉप या लॉन्ग टर्म क्रॉप लिया है. या अगर उसका टर्म लोन है तो उसकी विद इन दैट टाइम जो विद इन 2 क्रॉप सीजन में नहीं पेमेंट आती तो एनपीए होगा. तो दिस इज रिगार्डिंग द केसीसी. देन कुछ जो आपके एडवांसेस एग्रीकल्चर एडवांसेस है अफेक्टेड बाय द नेचुरल कैलेमिटीज कि नेचुरल कैलेमिटीज में जो इफेक्ट हो जाता है उसके ऊपर भी एक आरबीआई का सर्कुलर्स है. इट्स ऑन द डेटेड 17 अक्टूबर 2018. तो इसमें क्या है तो नेचुरल कैलेमिटीज में क्या बैंक क्या कर सकता है, बैंक क्या रिलीफ मेजर कर सकता है. जैसे कई बार फ्लड्स आ जाती है या कई बार सूखा हो जाता है तो उसमें अभी हम डिस्कस करते हैं किस टाइप की कैलेमिटीज है. तो उसमें बैंक क्या कर सकते हैं फार्मर्स की जो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन लोन है उसको लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं या उनका जो शेड्यूलिंग जो प्रीपेमेंट पीरियड है उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं या फिर अनदर फ्रेश लोन प्रोवाइड कर सकते हैं. तो दैट्स द क्राइटेरिया. तो दैट्स द क्राइटेरिया कि क्या क्या बैंक कैन डू इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज. तो अगर कोई कन्वर्जन और रीशेड्यूलिंग द टर्म लोन एज द फ्रेश शॉर्ट टर्म लोन है तो उसको वो करेंगे करंट ड्यूज. जैसे कोई बैंक आपका कोई जो रीशेड्यूल कर रहा है पीरियड्स को तो दैट्स द जो आपके ओनली फॉर द करंट ड्यूज ओवर ड्यूज के लिए नहीं होंगे. एंड उसको एक क्लासिफाई नहीं करेंगे हम एनपीए के ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं. एंड देन तो फर्स्ट थिंग क्या है कि फर्स्ट दैट हैव टू चेक जो नेचुरल कैलेमिटीज है दैट्स वेदर इट्स सम डिस्ट्रिक्ट वाइज या फिर स्टेट वाइज. अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज है तो डिस्ट्रिक्ट जो आपकी कंसल्टेटिव कमेटी जो है वो चेक करेगी डीसीसी या फिर स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी अगर इट्स इनटू द ऑल द स्टेट्स की स्टेट्स के पार्ट में. अगर वो वन और मोर डिस्ट्रिक्ट में है तो डीसीसी चेक करेगी. फर्स्ट have to check the natural calamity and second is the check the assessment of the loss कि अगर 33% से ज्यादा का लॉस है मोर देन आर इक्वल टू 33% तो देन बैंक विल रीस्ट्रक्चर और रीशेड्यूल द लोन.
तो ये टू प्रोसेस है उसमें कि पहले आपको चेक करना है कि जो नेचुरल कैलेमिटीज है दो दैट्स ओनली इनटू द स्टेट सम डिस्ट्रिक्ट या इनटू द कंप्लीट स्टेट एंड सेकंड थिंग यू हैव टू असेस द लॉस कितना लॉस हुआ है फार्मर्स को तो जो 12 जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं कौन कौन सी है इसमें ड्रोट आपका ड्रोट है या फिर फायर है फ्लड है देन हेलस्टॉर्म है पेस्ट अटैक है कोल्ड वेव देन साइक्लोन अर्थक्वेक देन सुनामी लैंडस्लाइड देन क्लाउड बर्स्ट ये सारे के सारे 12 टाइप ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज जो डिफाइन किए देन जो ये डिसाइड करना कि क्या क्या कैलेमिटीज हैं बैंक ने रीशेड्यूलिंग करना उसके लिए बैंक हैज गिवन द पावर टू द डिविजनल एंड द जोनल मैनेजर्स उनको कर रखिए कि आप लोन असेस करिए एंड सॉरी लॉस असेस करिए तो लॉस असेस अगर शुड इक्वल टू 33% और मोर है तो उसके उसमें रीशेड्यूल और द रिस्ट्रक्चरिंग तो वही तीन स्टेप हो गए कि whether it's for the district level more than one district या फिर state wise है SLBC otherwise DCC and then assessment of the laws and then restructuring rescheduling of the law तो जो आपके शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन्स हैं तो उसकी रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे जो भी आपके जो शॉर्ट टर्म लोन्स हैं दे आर एलिजिबल फॉर द रिस्ट्रक्चरिंग एक्सेप्ट जो ओवर ड्यू है जिस दिन आपके एट द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी उसमें ओवर ड्यूज होंगे दैट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द रिस्ट्रक्चरिंग तो रिस्ट्रक्चरिंग के लिए कौन से ही लोन्स हैं विच आर द करंट ड्यूज एंड करंट ड्यूज कैन बी आल्सो कन्वर्टेड टू द टर्म लोन उसमें एक साल का मोरिटोरियम भी बैंक देगा आपको एंड कोलेटरल सिक्योरिटी वगैरह की कोई जरूरत नहीं है नो एडिशनल कोलेटरल सिक्योरिटीज आते हैं तो उसमें परसेंटेज फिक्स कर रखिए कि अगर लॉस आर 33 to 50% then bank will give you the 1 year moratorium period and 2 years का repayment period उसी के इंक्लूडेड है 1 years में मोरेटोरियम टोटल आपका 2 years का जो मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड है अगर आपका लॉस जो फार्मर्स का लॉस है 50% से ज्यादा है तो 1 year का मोरेटोरियम उसी में इंक्लूड है 5 years का मैक्सिमम टाइम पीरियड है और अगर लॉस लेस देन 33% है देन नो नीड ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग तो उस केस में आपको रिस्ट्रक्चरिंग की कोई जरूरत नहीं है देन जो आपका रिस्ट्रक्चरिंग या रीशेड्यूलिंग फॉर द लॉन्ग टर्म लोन्स है लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर लोन्स है उसमें आपको चेक करना है लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर लोन्स जो आपके उसमें रीपेमेंट कैपेसिटी क्या है बोरोवर की उसके पास नेचर ऑफ कैलिबिलिटी क्या है देन प्रोडक्टिविटी एसेट्स डैमेज या फिर नोट तो उसमें हम दो केसेस लेते हैं फर्स्ट केस में कि सिर्फ क्रॉप डैमेज हुई है प्रोडक्टिविटी एसेट डैमेज नहीं हुई सेकेंड केस में प्रोडक्टिविटी एसेट्स आल्सो डैमेज तो फर्स्ट केस में अगर सिर्फ क्रॉप डैमेज हुई है तो जो आपका रीशेड्यूलिंग करनी है उसी के अकॉर्डिंग जो आपका कि कितने परसेंटेज लॉस है तो during the year of the natural calamity and the extension of loan for the period of 1 year then payment of interest जो है मे बी पोस्टपोन उसको भी पोस्टपोन कर सकते हैं बट इस केस में विलफुल डिफॉल्टर दैट शुड नॉट बी देयर और अगर आपकी प्रोडक्टिविटी एसेट्स भी डैमेज हो जाती है तो एक्सटेंशन ऑफ लोन पीरियड फ्रेश फाइनेंस की आपको रिपेयर्स वगैरह की कोई अगर जो एसेट्स डैमेज हुई है उसकी रिपेयरिंग वगैरह के लिए भी कुछ फ्रेश लोन प्रोवाइड कर सकते हैं और उसका रीपेमेंट पीरियड जो है 5 years तक कर सकते हैं नॉट एक्सीडिंग 5 years देन एसेट्स क्लासिफिकेशन जो इसकी एसेट्स क्लासिफिकेशन है रिस्ट्रक्चरिंग पोर्शन में इस केस में वन इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर कि एक ही एसेट्स की दो क्लासिफिकेशन भी हो सकती है कि एक ही एसेट्स उसका कुछ पार्ट आपका स्टैंडर्ड हो सकता है कुछ पार्ट आपका सब स्टैंडर्ड में हो सकता है तो जो रिस्ट्रक्चर्ड पोर्शन होगा आपका जो आपने रिस्ट्रक्चर किया दैट्स आर द करंट ड्यूज और अनरिस्ट्रक्चर्ड पोर्शन जो हमने कहा था कि ओवर ड्यूज वगैरह अंडर उसको रिस्ट्रक्चर नहीं करेंगे दैट्स द जो उसकी ओरिजिनल टर्म्स ऑफ कंडीशंस है तो इसीलिए एक के आपके जो आपका वन कैन बी इनटू द स्टैंडर्ड अनदर कैन बी इनटू द सब स्टैंडर्ड देन इंश्योरेंस proceed to be arrested against the restructured loan whether the fresh loans are granted so two assets classification can be possible in these case structured and unstructured dono are possible and to take the benefit of assets classification bank should do restructuring within the period of 3 months of the date of declaring the natural calamities कि जब बीसीसी ने या एसएलबीसी ने नेचुरल कैलेमिटीज डिक्लेयर कर दी उसके विद इन 3 months banks to restructure their loan so that they can take the benefit of the assets classification then अगर फॉर एग्जांपल करंट ईयर में
कुछ कैलेमिटीज है उसमें आपने रजिस्ट्रेशन कर दी, नेक्स्ट ईयर से फिर कुछ कैलेमिटीज आ गई, फिर आपने रजिस्ट्रेशन कर दी, देन देयर कैन बी द सेम एसेट्स क्लासिफिकेशन। उसमें सेकंड उसमें उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आपने सेकंड टाइम में उसको रिस्ट्रक्चर किए। तो दिस इज रिगार्डिंग द एसेट्स क्लासिफिकेशन। तो एज ए ऑडिटर व्हाट वी हैव टू चेक, अगर हमें ऑडिटर में क्या क्या चेक करना है, तो फर्स्ट यू कैन आस्क फॉर द डिटेल कि जो नेचुरल कैलेमिटीज है दैट्स डिक्लेयर्ड बाय द डीसीसी या एसएलबीसी, उसकी आप डिटेल लीजिए, कितना लॉस परसेंट हुआ है उसकी जो चेकिंग करी है जो बैंक के जोनल ऑफिसर वगैरह ने, तो उसकी चेकिंग करिए। और बेनिफिट्स क्या दिया है फार्मर्स को उसकी डिटेल चेक करिए, कौन कौन से रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स हैं जिसमें प्रोविजंस है, दैट यू कैन चेक। ओवर ड्यू अमाउंट, जो आपके जो नेचुरल कैलेमिटीज में जो ओवर ड्यू अकाउंट है, बिकॉज दैट कांट बी रिस्ट्रक्चर, कहीं उसी को तो रिस्ट्रक्चर रूल नहीं कर रहा है, वो आप चेक कर सकते हैं। देन रिस्ट्रक्चर जो अकाउंट्स है उसमें मोरिटोरियम 1 ईयर का है, इंश्योरेंस प्रोसीड्स रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट जो है वो आरबीआई को कोई मास्टर सर्कुलर है या डायरेक्शन है नेचुरल कैलेमिटीज के ऊपर, दैट यू कैन चेक एट द ऑडिट चेकलिस्ट। देन एग्रीकल्चर डेट रिलीफ वेवर स्कीम्स, कई बार क्या होता है जो वेव कर देते हैं बैंकर्स के फार्मर्स वगैरह के लोन्स वगैरह, कब जो वेवर स्कीम्स आ जाती है, तो दैट्स कैन बी पॉसिबल बाय द, कई बार स्टेट गवर्नमेंट कर देते हैं, कई बार द सेंट्रल गवर्नमेंट कर देती है कि एग्रीकल्चर डेट रिलीफ वेवर स्कीम्स है। तो उसमें क्या है, एज ए ऑडिटर वी हैव टू चेक हु आर द एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, देन क्या अमाउंट क्या है उस रिलीफ या वेवर्स का, देन व्हाट्स द एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स, क्या एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स है। अभिषेक जी अभी डिस्कस करते हैं, 1 मिनट में डिस्कस करता हूँ, ये बस कंप्लीट कर दूं, देन वी विल डिस्कस ऑन द क्वेरीज। सो अगर कोई डेट या रिलीफ वेवर स्कीम है, तो उस केस में एज ए ऑडिटर वी हैव टू आस्क, जो आपकी जो बैंक का सर्कुलर है उसकी आप कॉपी लीजिए कि क्या क्या स्कीम्स है बैंक्स की, कौन कौन एलिजिबल बोरोर्स है उसकी कुछ लिस्ट बनाई हुई होगी, क्या क्लेम्स है सेटलमेंट में वो आर ओ जेड को भेजा होगा उसकी डिटेल चेक करिए, क्या अकाउंटिंग एंट्रीज पास करी है जिनको डेट या रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड देन जो इंस्ट्रक्शंस है बैंक की उसकी क्या इंस्ट्रक्शंस है, एंड आल्सो यू कैन आस्क द रिटर्न रिप्रेजेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट, जो एमआरएल है उसको भी आप ले सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर एडवांसेस। तो अब हम एक एक करके कुछ क्वेरीज ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो अभिषेक जी की क्वेरी है, सर इन योर ओपिनियन एनपीए डेट इन सिंगल क्रॉप सीजन एंड ऑन नवंबर 30th बट यू टेकन एनपीए ऑन 31 दिसंबर। नहीं, वो आपका चेक करना है कि उसके अकॉर्डिंगली जो आप में बैंक्स ने क्या प्रोवाइड कर रखा है, जो आपका जो सैंक्शन लेटर है। रिमेंबर वन थिंग, कोई भी, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप बात कर रहे थे शायद, हाँ, तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, यू आर राइट। यहाँ पे उसको हम 31 दिसंबर की जगह 30 नवंबर भी ले सकते हैं, वो टाइम पीरियड आपके सैंक्शन लेटर में देखना है। आई अगेन अगेन आई एम सेइंग दिस इज ओनली एन एग्जांपल, जो मैंने सिर्फ उसकी डेट्स ली है, और यहाँ पे जो पीछे आईसीआई ने लिया है वो तो पूरा उनका पेमेंट पीरियड ही है, सिंगल क्रॉप में या मल्टीपल क्रॉप में वो पेमेंट पीरियड ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नवंबर के बाद दिसंबर लेना है, अदरवाइज दैट्स ऑन द बैंक इटसेल्फ, कि बैंक आपके सैंक्शन लेटर में, मैंने आपको अगेन आई एम सेइंग जो आरबीआई का जो लेटेस्ट सर्कुलर था उसके अकॉर्डिंगली आपके जो लोन एग्रीमेंट में है उसमें मेंशन करना पड़ेगा कब अकाउंट आपका एनपीओ होगा, क्या आपकी ड्यू डेट्स हैं, क्या आपकी रीपेमेंट डेट्स हैं, एंड रीपेमेंट किस किस डेट्स को देनी है, उसी डेट्स को आपका ओवर ड्यूज हो जाएगा। तो दैट यू कैन चेक फ्रॉम द सैंक्शन लेटर, एंड रिमेंबर दैट थिंग, हम लोग सैंक्शन लेटर चेक नहीं करते। सैंक्शन लेटर इज जस्ट लाइक, जो सैंक्शन लेटर है आपका इससे बाइबल, तो उसके अंदर इतनी सारी चीजें होती हैं दैट हैव टू फुलफिल, तो उसके अकॉर्डिंगली अभिषेक। यस, आई थिंक यू गॉट द आंसर। इसके अलावा कोई और क्वेरी, इफ एनीबॉडी हैव द क्वेरी दैट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर लोन्स। इसको आप देख सकते हैं कि आपने कौन सा लेना है, जो मेरे अकॉर्डिंग है वो आपका मैंने आपको बता दिया, इट्स
टू क्रॉप सीजन, क्योंकि यहाँ पे आप अगेंस्ट हर बार टाइम नहीं दे सकते उसको, कि यहाँ पे भी आपको 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा टाइम दिया है फॉर द पर्पस ऑफ सेल ऑफ क्रॉप, जो आपकी हार्वेस्टिंग के बाद हार्वेस्टिंग टाइम है उसके बाद सेल ऑफ क्रॉप के लिए टाइम दिया है। तो जो वहां पे आरबीआई का सर्कुलर है उसमें एनपीए कब है, यहाँ पे जो मेंशन क्लियर कट मेंशन है फॉर टू क्रॉप सीजन, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लोन में, और यहाँ पे भी है टू क्रॉप सीजन, यहाँ पे टू क्रॉप सीजन है। थैंक यू वेरी मच अभिषेक जी, थैंक्स a lot. If anybody have any other query, so that we can discuss. Otherwise, very soon एक दो और इश्यूज रह गए हैं। एक तो हमारा लफार के ऊपर एक वेबिनार है, माइट बी वी विल डू ऑन 30th, और एक है हाउ वी कैन कैलकुलेट द एनपीए थ्रू द सीबीएस थ्रू एक्सेल फॉर्मेट्स, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि एक्सेल शीट्स के थ्रू ही आप इजीली, तो आपका टाइम सेव हो सकता है, हाउ यू कैन कैलकुलेट द एनपीएस। ठीक है, एनी अदर क्वेरी? So I think Pooja ji, I don't know if she's here or not. So thank you very much everyone for patience hearing. तो अदरवाइज भी अगर कोई और क्वेरी हो तो उसमें मेरा नंबर वगैरह तो मेंशन है ही सही, तो यू कैन, मैं अगेन आपको कैन शो यू, तो कोई और क्वेरीज है दैट वी कैन डिस्कस फर्दर, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा या फिर मेल कर दीजिएगा, वेन एवर आई हैव द टाइम विल डेफिनेटली आंसर यू। बट ये मत कहिएगा कि ऑडिट कैसे मिलेगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। यस, आई कैन ओनली आंसर द क्वेरीज, जो आपकी क्वेरीज है उसके ऊपर आंसर कर सकता हूँ। दिस इज माय नंबर एंड द ईमेल आईडी, आप कभी भी भेज सकते हैं, विल ट्राई टू आंसर ऑल दिस। तो थैंक यू भूषण भाई, थैंक यू वेरी मच, सो टेक केयर, बाय बाय।